Hello, everyone. Welcome to another episode of Legal Update. The topic of discussion is economic offenses can't be quashed by settlement. First, let us see why it is in the news. Recently, the Supreme Court dismissed an appeal in Anil Bhavarlal Jain and another versus the state of Maharashtra and others case, refusing to quash a corruption case involving rupees 6.13 crore bank loss despite a settlement. Let's look at the background of the case. The appellants, directors of Macer Sun Infrastructure Private Limited, were accused of fund diversion, fraudulent collateral valuation, and irregular loan payment. The case originated from an FIR and charge sheet filed by the State Bank of India. The settlement was recorded between the appellants and SBI at Debt Recovery Tribunal proceedings, where the bank claimed a loss of rupees 6.13 crores. The Bombay High Court refused to quash the case, leading to the appeal before the Supreme Court. The court observation was as follows. The bench of Justice Vikram Nath and Justice Prasanna B. Varale ruled that economic offences with societal impact cannot be trivialized by settlements. It ruled that settlements in Debt Recovery Tribunal cannot erase criminal liability under the Prevention of Corruption Act. Let's know more about the Prevention of Corruption Act 1988. It is an act of the Parliament of India enacted to combat corruption in government agencies and public sector businesses in India. The act defines various forms of corruption, including bribery, criminal misconduct, and possession of disproportionate assets. It prescribes punishments for these offences, which can include fines and imprisonment. The Act was significantly amended in 2018 to include corporate bribery, provide for time-bound trials, and protect coerced bribe givers who report the offence within 7 days. Let's now discuss a case law related to it. Neeraj Datta vs. State 2022. In this case, the court has clarified that the prosecution ought to prove the offer made by the bribe giver and the demand by the public servant as a fact and issue to establish an offence under the Prevention of Corruption Act 1988. Before we wrap up, here's a question for you. What is the primary purpose of the Prevention of Corruption Act 1988? To regulate private businesses? To combat corruption in government agencies and public sector businesses? To promote corporate social responsibility? Or to manage foreign investments? Send the answer to this question in the comment section. Like, share and subscribe for more such content. नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है आर्थिक अपराधों को समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल भंवरलाल जैन एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें समझौते के बावजूद 6.13 करोड़ रुपए के बैंक घाटे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया। चलिए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। मेसर्स सन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों, अपीलकर्ताओं पर धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ीपूर्ण संपार्श्विक मूल्यांकन और अनियमित ऋण भुगतान का आरोप लगाया गया था। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दर्ज की गई FIR और आरोप पत्र से उत्पन्न हुआ। ऋण वसूली न्यायाधिकरण की कार्यवाही में अपीलकर्ताओं और SBI के बीच समझौता दर्ज किया गया, जहां बैंक ने 6.13 करोड़ रुपए की हानि का दावा किया। बम्बई उच्च न्यायालय ने मामला रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। न्यायालय की टिप्पणी की बात करें तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने फैसला सुनाया कि सामाजिक प्रभाव वाले आर्थिक अपराधों को समझौते के जरिए महत्वहीन नहीं किया जा सकता। इसने फैसला सुनाया कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण में निपटान से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक दायित्व समाप्त नहीं हो सकता। आइए अब जान लेते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बारे में। यह भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो भारत में सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया है। अधिनियम में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को परिभाषित किया गया है, जिनमें रिश्वतखोरी, आपराधिक कदाचार और आय से अधिक संपत्ति रखना शामिल है। इसमें इन अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें जुर्माना और कारावास शामिल हो सकता है। इस अधिनियम में 2018 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट रिश्वतखोरी को शामिल किया गया, समयबद्ध परीक्षण का प्रावधान किया गया और जबरन रिश्वत देने वालों को सुरक्षा प्रदान की गई, जो 7 दिनों के भीतर अपराध की रिपोर्ट करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इससे संबंधित एक केस के बारे में। नीरज दत्ता बनाम राज्य 2022। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को रिश्वत देने वाले द्वारा की गई पेशकश और लोक सेवक द्वारा की गई मांग को तथ्य के रूप में साबित करना होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निजी व्यवसायों को विनियमित करना, सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए,
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए या विदेशी निवेश का प्रबंधन करना? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।